in that green grass. और लूत को पता नहीं था कि उसी हरियाली में बहुत सारे सांप भी छुपे थे। Hallelujah. हालेलुया। You know, Abraham was so amazing. He gave a choice to Lot. If you go to this side, I'll go to the other side. अब्राहम इतना अद्भुत व्यक्ति था, उसने लूत को चुनाव दिया कि तू चुन, तुझे कहाँ जाना है। I believe, you know, if Abraham would have gone to Sodom and Gomorrah, he would have captured the whole of Sodom and Gomorrah. इसका मतलब अगर अब्राहम सदोम और गमोरा जाता था तो पूरा सदोम गमोरा पे राज करता था। Because he had faced already other kings mightier. क्योंकि उसने पहले भी बहुत उससे भी ज्यादा सामर्थ्यशाली राजाओं का सामना किया था। And Abraham was so confident because he knew that God of heavens and the earth was there with him. और अब्राहम इतना विश्वासी था, उसे पता था कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर मेरे साथ है। So he's coming from the battle. इसलिए वो जब युद्ध से वापस आता है And he's recovered everything that the enemy has stolen. और उसने सब कुछ वापस पा लिया जो खोया था। And it was not Abraham's strength that they gave him the victory. It was God Almighty who went with Abraham and gave him the victory. और ये जो जीत अब्राहम को मिली वो उसकी सामर्थ के द्वारा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर के द्वारा मिली जो उसके साथ युद्ध में गया था। And then when he's coming on the way, he meets the great high priest Melchizedek. और जब वो वहां से वापस आता है तो वो एक महान याजक से मिलता है जिसका नाम था मलकीसदेक। And the word declares, and verse 18, chapter 14, verse 18, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was a priest of the Most High God. और 14वें अध्याय, उत्पत्ति 14वां अध्याय 18वां वचन कहता है, तब शालेम का राजा मलकीसदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। All right, and then verse 19 says, and he blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. और अगले वचन में आप देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम को उसने आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। Now verse 20 gives you the key for victory that Abraham got. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. और जो 20 वचन है, अगला वचन है, वो एक कुंजी है कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को विजय दिलाई। वो वचन कहता है कि धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। That means God had delivered the enemies into the hands of Abraham. इसका मतलब अब्राहम के हाथों में परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को दे दिया है। Says God has delivered our enemy into our hands, I'm telling you. संतो परमेश्वर ने हमारे सारे शत्रुओं को हमारे हाथ में दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And when this king is coming, when Melchizedek is coming, the word declares he brought forth bread and wine. और इसका वचन कहता है कि जब मलकीसदेक आता है तो वो रोटी और दाख मधु ले आता है। And if you look at the book of Hebrews chapter 7, और अगर आप इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय में जाओगे, let's turn to it. हम वहां जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय Verse 1 onwards, I think. और पहले वचन से पढ़ेंगे। For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. और यह मलकीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान ईश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट आता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। Saints, you know, the high priest and the priest, then they came from the tribe of Levi. संतो आप जानते हो कि जो याजक थे और महायाजक थे वो लेवी कुल से आते थे। And when the tribe was selected by God from the tribe of Levi, that is the time the law was given to them. और ये जो कुल था, ये जो घराना था लेवी का, वो उसी समय चुना गया था जब परमेश्वर ने अपना नियम मूसा को दिया था। Yeah, and under the law, the high priest never gave anything to the people; he took it from the people. और उस नियम के अनुसार याजक जो है, याजक या महायाजक, जो कभी भी लोगों को कुछ देते नहीं थे, लोग उन्हें दिया करते थे। It's like, you know, they used to plunder the people. इसका मतलब वो एक प्रकार से लोगों को लूटते थे, right? But Jesus did not come from the tribe of Levi; he came from the order of Melchizedek. लेकिन जो यीशु है वो लेवी कुल से नहीं आया, वो मलकीसदेक के ऑर्डर में आया है। And the order of Melchizedek doesn't take from people but gives it to the people. और मलकीसदेक से जो आता है वो लोगों से लेता नहीं, लोगों को देता है। Because the scripture says Melchizedek gave bread and wine. लेकिन वचन कहता है कि मलकीसदेक जो है उसने रोटी और दाख मधु दिया। And the word declares that, and this man, about Christ Jesus,
और वचन कहता है कि ये मनुष्य जो यीशु मसीह है, because he liveth forever, he hath an unchangeable priesthood. क्योंकि वो कभी मरता नहीं, वो सदा जीवित रहता है, उसका याजक पद भी हमेशा के लिए वैसा ही रहता है। And because Jesus came from the order of Melchizedek, Jesus doesn't take anything from his bride, but always gives it to his bride. और जब यीशु मसीह जो है वो मलकीसदक से वंश से आता है, तो इसीलिए वो अपनी दुल्हन से कुछ लेता नहीं है, उससे सब कुछ दे देता है। Hallelujah. हालेलुया। दुल्हन से लेता नहीं, वो देता है. तो हम कहेंगे लेता नहीं, वो देता है। You know, that was the problem that happened in the Garden of Eden. और यही समस्या थी जो अर्दन की वाटिका में हुई। You know, man is always supposed to give, not to take. जो मनुष्य है, पुरुष है, उसे हमेशा देना है, लेना नहीं है। If the wife wants a child, the husband has to give the seed to the wife. She's the one who's on the receiving side, not on the giving side. तो अगर किसी स्त्री को बच्चा चाहिए, अगर पत्नी को बच्चा चाहिए, तो पुरुष को उसे बीज देना होता है, तब जाके उसे बच्चा हो सकता है। So it is always the man who gives and the woman is the one who always receives. इसका मतलब जो पुरुष है वो देने वाला है और स्त्री जो है वो पाने वाली है। But in the Garden of Eden, how did Adam receive the fruit from the wife? लेकिन अदन की वाटिका में आदम ने अपनी स्त्री से फल लिया। You know, the order, Jesus came back and reversed the order. यीशु आया और उसने उस क्रम को सीधा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। He is our husband, we are his bride. He always gives, and he will give till the end. Giving, he also gave up his life for the bride. यीशु अपनी दुल्हन का दूल्हा है और जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है जो हमेशा उससे पाती है। And he gave bread and wine. Bread not only shows his body, bread also shows healing. और जो रोटी है वो उसका सिर्फ शरीर ही नहीं दर्शाता है, वो चंगाई को दर्शाता है। Healing is children's bread. चंगाई जो है वो बच्चों की रोटी है। Then what about grown-ups? तो जो बड़े हुए उनका क्या? Grown-ups, they don't need healing, they live in divine health. जो बड़े हुए हैं, प्रौढ़ है, वो बीमारी में नहीं रहते, वो बीमार ही नहीं पड़ते, वो दिव्य चंगाई में जीते हैं। Grown-ups know how to keep their body strong and fit and healthy. जो प्रौढ़ है उन्हें पता होता है अपने शरीर को समृद्ध और अच्छी सेहत में कैसे रखना है। Hallelujah. हालेलुया। Let's partake. Thank you, Jesus. तो हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। Thank you, wonderful Father. धन्यवाद अद्भुत पिता। Oh, we give you praise, Lord, that you gave your body for us. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जो आपने अपने शरीर को हमारे लिए दिया। And we thank you, Lord, that your body was broken so that our bodies would be made whole. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका शरीर तोड़ा गया ताकि हमारा शरीर परिपूर्ण किया जाए। And we thank you, Lord, that your body was broken to such an extent that your bones were visible. और आपका शरीर इस प्रकार से इस हद तक तोड़ा गया कि आपके शरीर की सारी हड्डियां दिख रही थी। And that's why, Lord, our bodies have been repaired, oh God. और उसी कारण हमारे शरीर ठीक किए गए हैं, चंगे किए गए हैं। No sickness can thrive in our body. इसीलिए कोई भी बीमारी हमारे शरीर में राज्य नहीं कर सकती। There cannot be any imbalances in our body, Lord. हमारे शरीर में कोई असंतुलन नहीं रह सकता। Because your body went out of balance. That's the reason we have been made whole, oh God. क्योंकि आपका शरीर संतुलन से हिल गया था, इसलिए हमारा शरीर का संतुलन ठीक हो गया प्रभु। All your bones were out of your joints, Abba. आपके सारी हड्डियां ढांचे से निकल गई थी प्रभु। That's why we cannot have arthritis, oh God. इसलिए हमें आर्थराइटिस नहीं हो सकता There प्रभु। cannot be any pain in our body, Father. हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं हो सकता प्रभु। No sickness can thrive in our body. कोई भी बीमारी हमारे शरीर में राज्य नहीं कर सकती। No germs can ever thrive in our body, Lord. कोई भी विषाणु हमारे शरीर में जीवित नहीं रह सकता। Anything which is not of you, oh God, will repel automatically, oh God. जो कुछ भी आपका नहीं है प्रभु वो निकाला जाएगा, हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। Yes, you know, even as we partake, I can discern that our bodies have been revitalized. और जैसे हम इसमें भाग ले रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि हमारे शरीर नए किए जा रहे हैं। Everybody can receive right now their health in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। We give you praise, Father. हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। Millions of thank you, Father. आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। Thank you, Master. धन्यवाद मालिक। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's partake, saints. हम भाग लेंगे।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो क्या यीशु से उनकी कलीसिया ले रही है? आमेन, 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 ऑसम। सो या जैसे आपने अभी भाग लिया प्रभु भोज में, तो हमारा एक मीटिंग रहता है जो ऑनलाइन रहता है गूगल मीट पे, मंडे से लेके थर्सडे, सोमवार से लेके बुधवार नहीं गुरुवार तक। यस, सो सोमवार से लेके गुरुवार तक शाम को रात को 10 से 10:30 प्रभु भोज का मीटिंग रहता है। सो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ये मीटिंग में जुड़े, है ना, क्योंकि जैसे अभी वचन में बोला था कि हमारे लिए क्या है ना, यीशु की कलीसिया के लिए क्या है? दिव्य स्वास्थ्य, आमेन। यस, सो जो दिव्य स्वास्थ्य में चलते हैं उनके लिए लॉर्ड सपर में पार्टेक करना नॉर्मल होता है, आमेन। यस, सो आप सब आएंगे, जुड़ेंगे 10 से 10:30 गूगल मीट पे, ऑनलाइन जुड़ना है आपको। सो हम सभी मंडे टू थर्सडे मिलेंगे गूगल मीट पे और साथ में प्रभु भोज में भाग लेंगे, आमेन, आमेन, ऑसम। सो इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स रहती है वो है ट्यूसडे को हमारी मीटिंग रहती है, मंगलवार को शाम को 7 बजे ये जो मीटिंग रहती है ये ऑनलाइन रहती है, और इसमें वचन की घोषणा की मीटिंग है ये, आमेन। तो हम वचन की घोषणा हमें करना है, ये तो हमें रोज ही करना है, राइट, बट KOHM आपको मदद कर रहा है ताकि एटलीस्ट एक दिन आपको एक आइडिया हो और साथ में हम मिलके कलीसिया के साथ हम घोषणा करें वचन में, आमेन। सो ये ट्यूसडे को रहता है। नेक्स्ट मीटिंग हमारा रहता है थर्सडे को। सो थर्सडे को दैट इज गुरुवार को हमारा जो मीटिंग रहता है वो दिन में 2 बजे रहता है। ये इंटरसेशन का मीटिंग है। बेस्ट पार्ट ऑफ इंटरसेशन इज कि ये अन्य भाषा में इंटरसेशन करना है, सो ज़्यादा कुछ लोड नहीं है। हालेलुया, यीशु ने बहुत ईजी कर दिया हमारे लिए, आमेन। क्या आप खुश हैं अन्य भाषा में बात करने के लिए? आमेन, यस। सो जैसे हमारा रोजी रोटी होता है वैसे अन्य भाषा में रोज बात करना होता है हमारे लिए, आमेन, यस। सो ये मीटिंग में आप अन्य भाषा में एक साथ जुड़ के आप अन्य भाषा में, हम सभी अन्य भाषा में बात करते हैं, है ना, कलीसिया के लिए, यू नो, देश के लिए प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। सो अगेन ईजी होता है, हालेलुया। सो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी थर्सडेज को दिन में 2 बजे आप ये मीटिंग के लिए जुड़े ऑनलाइन। सो आप अगर काम पे जा रहे हैं तो अलग चीज़ है, बट अगर आप घर पे हैं तो एटलीस्ट आप जुड़ सकते हैं, हालेलुया, यस, ओके। सो इसके अलावा नेक्स्ट हमारा मीटिंग रहता है फ्राइडे को, है ना, गुरुवार को शाम को 7 बजे। ये जो मीटिंग है ये हीलिंग और डिलीवरेंस की सभा है। तो मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मीटिंग के बारे में बताएं ताकि लोगों को जो वो वचन है, जिससे यू नो जो सच्चा वचन है वो उनको पता चले, आमेन, हालेलुया। क्या आप सब मेरे साथ हैं? आमेन, आमेन। नेक्स्ट हमारा जो मीटिंग है वो है फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग। सो फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग की डेट है 31 अगस्त, है ना, इसी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, है ना, अगले से अगले रविवार यहीं पे हमारा मीटिंग रहेगा, फास्टिंग मीटिंग, सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक, आमेन। सो नेक्स्ट संडे तक हम आपका रजिस्ट्रेशन भी ले लेंगे, हालेलुया। आप सब आ रहे हैं? कौन कौन आ रहा है फास्टिंग मीटिंग के लिए? कम आए हाथ, थोड़ा और बढ़ाओ, चलो, ओके। सो आप और ऐसे हाथ लेके आ सकते हैं, आमेन, यस। आप और लोगों को लाइए फास्टिंग मीटिंग के लिए, संडे मीटिंग के लिए, या ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु के बारे में पता चले और जैसा हम जीवन जी रहे हैं वैसा वो भी जिए, हालेलुया। अच्छा है जीवन, राइट, आमेन, आमेन, यस। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा इस महीने का लेडीज सभा है नेक्स्ट संडे 24 तारीख को, 24 अगस्त को नेक्स्ट संडे हमारा ये मीटिंग रहेगा। तो ये हमारा मीटिंग हमारे पास्टर जी के घर पे पिंपली गौरव में रहेगा। सो लेडीज़ गर्ल्स आप लोग समय निकालें, और ये मीटिंग हमारी शाम को 6 बजे, हाँ, शाम को 6 बजे रहेगी ये मीटिंग। सो लेडीज़ प्लीज़ आप समय निकालें और हम सब साथ में सहभागिता करेंगे, आमेन। रेडी है लेडीज़? आ रहे हैं, राइट? हेलो, ओके, थैंक यू जीसस। हाँ, इसके अलावा जो हमारा बाइबल स्टडी रहता है सैटरडे को, सो शनिवार, है ना, शनिवार का जो हमारा बाइबल स्टडी है उसका टाइमिंग्स बदला है थोड़ा ज़्यादा समय, क्योंकि सब कंप्लेन कर रहे थे बहुत कम समय है, पता ही नहीं चलता वचन कब चालू होता है कब ख़त्म होता है, यस। सो हमने वो प्रॉब्लम का समाधान ये निकाला है कि वो मीटिंग आपको शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रहेगा वो मीटिंग, 4 से 8,
थोड़ा बेटर हुआ, राइट? यस, 4 से 8 ऐसा निकल जाता है प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ। आमेन। सो ये मीटिंग्स यूजुअली हमारे कोई ना कोई घर परिवार में होती है। सो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मीटिंग्स में मैं अनुरोध करूंगी कि आप समय पे आएँ, है ना, तो हम सब साथ में वचन में और ग्रो करेंगे। आमेन, आमेन। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे। यस, सेल मीटिंग्स अगर किसी को स्टार्ट करना है आपके घर पे तो आप ज़रूर से हमें बता सकते हैं, है ना। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो ज़रूर से हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार तो आपके घर पे ज़रूर आएंगे और साथ में हम बाइबल स्टडी करेंगे। आमेन। ओके, सो मेरे राइट हैंड पे ऑफरिंग बॉक्स है और QR कोड है। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए भी स्क्रीन के नीचे QR कोड आ रहा होगा। जैसे आपको प्रभु चला रहे हैं, प्रभु के राज्य में आप बीज बोना चाहते हैं, आप ज़रूर से बोएं। और आज जो वचन हमारे साथ बांटेंगे, मैं ये उनसे अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इस पर भी एक्सपाउंड करें, इलैबोरेट करें, ताकि हम सब प्रकाशन के साथ बीज बोएं। आमेन। यस, सो फाइनली सब तैयार हैं आज के वचन के लिए कि पवित्र आत्मा हम सभी से बात करेंगे। आमेन। यस, पिछले हफ्ते भी मैंने यही बोला था, अपेक्षा होना ज़रूरी है। यस, डिज़ायर होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सारे चीज़ डिज़ायर से काम करती है। हालेलुया। यस, कि अगर हमें इच्छा है, हमें बढ़ना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए। आमेन। यस, फिर दुनिया की कोई भी नींद, कोई भी आलस भी आपको छू नहीं सकता। आमेन। थोड़ा आमेन बोलेगी, कल से तेज बोलेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो आप रेडी हैं कि आज पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे और हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे जो हमारे लिए पर्सनल है। आमेन, आमेन। क्योंकि संडे सभा ऐसा नहीं है कि अरे बस हाजिरी देनी, अटेंडेंस देना है। नो 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 नो, हमारे लिए नहीं है वो। हालेलुया। यस, सो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे डेलॉन ब्रदर का, जो आज हमारे साथ वचन बांटने वाले हैं, और ट्रांसलेशन के लिए आशीष प्रो का। तालियों में थोड़ा कमी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray in tongues for 2 minutes. हम अन्य भाषा में बात करेंगे 2 मिनट के लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As Brother Clifford said, that our God is the God who gives. जैसे क्लिफर्ड भाई ने बताया कि हमारा परमेश्वर वो है जो देता है। When he created the universe, when he created mankind, he made man in his own image. जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की और मानव जाति की रचना की, तब उसने मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया। In his own image and likeness. उसके स्वरूप में और समानता में बनाया। That means he wanted man also to be a giver.
उसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य भी देने वाला हो, And the way he created man is he equipped him to be a giver. और परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया कि वो देने वाला है। And even when you read the Bible, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, throughout from Genesis to Revelations, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, you will see this nature in all of God's chosen people. और हम ये स्वभाव मनुष्य के चुने हुए लोगों में हम देखते हैं कि वो देने वाले लोग होते हैं। They have all been givers. वो सब देने वाले लोग हैं। If you see Abraham, Moses, if you see David, they are अगर- all givers. अगर हम देखते हैं अब्राहम को, मूसा को, दाऊद को, वो देने वाले लोग थे। That's his nature, that's God's nature, ये परमेश्वर का स्वभाव है जो देने वाला स्वभाव है। which he put into all of us. वो स्वभाव परमेश्वर ने हम में से हर एक के अंदर रखा है। It's not that you have to think and calculate how much should I give. ये ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में रखना है कि मुझे कितना देना है, ऐसा नहीं। God says, whatever you want to give, give. Just give it with your heart. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुमको देना हो, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो, तुम उसको दे दो। Be cheerful when you are giving. आनंद के साथ, हर्ष के साथ दो। You don't have to calculate how much will I give, how much will remain, how much will I get back. All that you don't have to do. आपको एक गणित नहीं करना है कि मैंने कितना देना चाहिए, मैं कितना दूँ, कितना मेरे पास रखूँ, उसके बाद बचा हुआ में से कितना दूँ, ये गणित आपको नहीं करना है। Just prepare your heart. Say, God, I just want to give you, and whatever amount comes to your mind, comes to your heart actually, give that amount. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे दिल को तैयार करे कि मैं दूँ, और परमेश्वर जो कुछ संख्या, जो कुछ पैसों की संख्या आपके मन में रखेगा, उसके अनुसार आप परमेश्वर के राज्य में दीजिए। Remember, God is never in debt. याद रखिए, परमेश्वर कभी कर्जदार नहीं रहता। In fact, whatever you give, God will never remain in debt. जो कुछ आप देते हो, परमेश्वर उसका कर्जदार नहीं रहेगा। He will bless you multiple times, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा, बहुत बार देगा, such that you will not have any lack. कि जिसके द्वारा आपके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। That is why giving is one thing that we should do without having to think. इसलिए हमें बिना सोच के देना चाहिए। And once again, I want to say, don't worry about the amount. It's the heart that matters, not the amount that matters. इसलिए मैंने कहा कि आप कितना रुपया दे रहे हैं वो उसका मतलब नहीं, लेकिन जिस हृदय से आप दे रहे हो वो मायने रखता है। So right now, if you feel the Lord speaking to your heart and telling you give, just obey God. अगर परमेश्वर आपसे अभी बात कर रहे हो और बता रहे हो कि आप दो, तो जो कुछ परमेश्वर आपको बोल रहे हैं आप दीजिए। It's the attitude that matters. That I will be obedient to God and I will give. ये एटीट्यूड कि परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया है, मैं उसको आज्ञा पालन करूंगा और मैं दूंगा, वो मायने रखता है। So whenever you feel like, you can just get up and put whatever you want to put into the donation, into the offering box, and you can, if you want to give online, then you can scan the code and you can put. तो मीटिंग के दौरान जब कभी आपको लगे कि आपको देना है, तो यहाँ पर ऑफरिंग बॉक्स रखा है, आप वहाँ दे सकते हैं, या फिर QR कोड भी है, तो आप वहाँ उसको स्कैन करके भी आप दे सकते हैं। Okay, so now we'll move on to the message. तो हम अभी वचन की ओर जाएंगे। So we are in the series of righteousness, तो हम धार्मिकता की जो सीरीज है उसके बारे में सीख रहे हैं। and I was actually trying to prepare some points yesterday about what I'm going to speak about. और कल मैं इस पर अभ्यास कर रहा था कि आज मुझे क्या बताना है। But today morning the Lord told me, whatever you have prepared, throw it out. तो आज सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कल तूने जो कुछ तैयारी की है उसको बाजू में कर। So now I'm relying totally on God. I have just put down a few scriptures and we'll see about that. But the Lord gave me these scriptures. He said, go through this flow. तो परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन बताए और कहा कि इन वचनों के द्वारा तू बात कर, क्योंकि मैंने जो कुछ तैयार किया था आज सुबह ही परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू उसको बाजू में कर दे, इसलिए पूरी तरह से मैं अभी पवित्र आत्मा पर निर्धारित हूँ। Yes, so the Holy Spirit is going to take over and let's see what comes out of this. तो पवित्र आत्मा इस सारी चीज़ों का कब्जा लेगा और हम देखेंगे कि कैसा पवित्र आत्मा हमें चलाता है। So we started with this topic 2 weeks back. तो 2 हफ्ते पहले हमने इस टॉपिक को हमने शुरू किया था। And I believe that everyone understands the meaning of righteousness. तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमें से हर एक जन ये समझता है कि धार्मिकता क्या है। Is there anyone who doesn't know or doesn't understand the meaning of righteousness? कोई है जिसको नहीं पता कि धार्मिकता का मतलब क्या होता है? Because you can refer to the last 2 sessions that we had on this topic.
तो अगर आपको नहीं पता तो पिछले दो जो सेशंस हुए थे, दो जो प्रचार हुए थे, उनको आप देख के समझ सकते हो कि धार्मिकता क्या है. So then I will not go into the very basic understanding of what is righteousness. I will straight away go on to the scriptures that God has given me. तो हम धार्मिकता के बेसिक्स को समझने का नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने धार्मिकता के विषय में क्या कहा है हम वो सीखने का प्रयास करेंगे. But before we get into the scripture, first I just want you to imagine something. तो वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए. So I want you to imagine that somebody has given you something very precious. Like think it's a diamond. Somebody has given into your hands a nice big diamond. तो ऐसी कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको बहुत एक बहुमूल्य डायमंड जो हीरा है, बहुमूल्य हीरा आपको दिया है. And you are so excited looking at the diamond because it's really an awesome diamond. और आप उसको देख के बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत हीरा है वो. And when you hold it in your hand, और जब आप उसको अपने हाथ में रखते हो, whatever light is there in the room, it is just going into it and making it shine bright. और जब उसको आप हाथ में रखते हो तो जो उसके प्रकाश से पूरा रूम चमक रहा है, चमकदार हो गया है. And you know that when light goes through a diamond, you see different colors. और जब उस हीरे में से जब प्रकाश जाता है तो हम अलग अलग रंगों को देखते हैं. And it's making it look more brighter. और उसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा वो हीरा और चमकदार हो गया है. It's not like a piece of glass which will just reflect light. ये कोई कांच का ग्लास नहीं है कि जो सिर्फ रोशनी को उधर भेज देगा. But it's a diamond. It will refract and reflect light in multiple ways. लेकिन ये हीरा है जो प्रकाश को, जो रोशनी को वो और ज़्यादा तेजोमय करेगा और प्रकाशित करेगा. So imagine if you are here standing in the room with that diamond. और कल्पना कीजिए कि आप इस कमरे में उस हीरे को लेकर खड़े हो. That light is shining so bright that everyone starts turning to look at what is this. और ये हीरा इतना प्रकाशित हुआ है कि हर एक जन उसको देखने के लिए उसकी ओर मुड़ गया है. That it actually starts distracting everyone. उसके द्वारा हर एक जन उस हीरे की ओर उनका ध्यान देख रहे हैं. So then you decide to put it in your pocket and hide it. तब आपने निश्चय किया कि ठीक है, अभी सब लोग देख रहे हैं, मैं मेरे जेब में इसको डाल के छुपा के रखता हूँ. But suppose somebody has seen it in such a way that they have an intention of snatching it from you. लेकिन अगर किसी ने, समझ लो उस भीड़ में से किसी ने देख लिया और उसने निश्चय किया कि इस अब हीरे को मैं चुरा लूंगा आपके पास से. And let's say you go walking down the road. और कल्पना कीजिए कि आप उस हीरे को जेब में रख के आप रास्ते से जा रहे हो. And somebody is following you. और कोई आपका पीछा कर रहा है. And takes the opportunity to cut your pocket and snatch the diamond from it. और उसने क्या किया कि मौका देख के आपका जेब काटा और उस हीरे को आपसे चुरा लिया. By the time you reach home, you realize your pocket is empty. और जब तक आप घर में जाते हो तब आपको पता चलता है कि अरे मेरे जेब से तो हीरा गायब हो गया, मेरा जेब किसने काट लिया. And you had no idea when you lost that diamond. और आपको कल्पना नहीं कि आपका जेब कब काटा गया. Now imagine, I want you to imagine what are your feelings going to be at that point in time when you realize you have lost the diamond. तो मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि जिस क्षण आपको पता चला कि आपने उस हीरे को खो दिया है, किसने आपका हीरा चुरा लिया है, उस समय आप किस अनुभव से जाओगे. What things will be going on in your head and what will you be feeling in your heart at that moment when you realize I have lost that diamond, the so precious diamond. क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा क्या आपको महसूस हो रहा होगा जब आपको पता चला कि आपके जेब से वो हीरा चुरा लिया गया. Maybe that diamond was worth crores of rupees. हो सकता है कि वो हीरा करोड़ों रुपए का हो. And suddenly you realize, oh, I was rich and now I've become poor. और आपको अचानक से समझ में आया कि अभी तक, जब तक मेरे पास हीरा था तब तक मैं करोड़पति था, लेकिन अब तो मैं गरीब हो गया हूँ. So you definitely will not be feeling good. तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा उस समय. Maybe even feeling angry. आपको गुस्सा आ रहा होगा. And every time you're thinking, how did I lose it? How could it ever happen to me? और आप बार बार सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे इस हीरे को खो सकता हूँ. How did I not keep track of it when it was in my pocket that somebody could take it away from me? और ऐसा कैसे होगा कि मैं उस हीरे का ध्यान नहीं रख पाया और किसी ने वो हीरा मुझसे चुरा लिया. So these feelings will upset you to such an extent that you might even want to close yourself in a room and just pity yourself.
और हो सकता है कि इन चीज़ों के द्वारा आपको इतना बुरा लगे कि आप अपने आप को एक रूम कमरे में बंद कर दो. And as you are thinking about it, you are actually worrying more about the loss that you have suffered. और जब हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो आपको कितना नुकसान हुआ, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे. You might have some memories of when you had it and how beautiful it was looking in your hand. और आप सोच रहे होगे कि आपके हाथ में जब वो था वो कितना सुंदर दिखता था. But now that you have lost it, you are feeling really bad. लेकिन जब आप उसको खो चुके हो तो आपको बहुत बुरा लग रहा है. But let me tell you one thing, that all of us have actually gone through this. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम में से हर एक जन इस प्रक्रिया से गुजरा है. It started with Adam. ये शुरुआत हुई थी इसकी आदम के द्वारा. He had that precious gift. उसके पास ये बहुमूल्य तोहफा था. When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, He created him in His own image and likeness. परमेश्वर ने उसको उस परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाया. And we know that God is a righteous God. और हम जानते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है. So if He created Adam, He also created Adam with righteousness. तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को उसकी धार्मिकता में बनाया. So Adam was there with having full righteousness of God that came from God. तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम के पास पूरी परमेश्वर की धार्मिकता थी. And all he had to do was just flow with God in the relationship that he had with God. उसको केवल एक ही काम करना था कि परमेश्वर के साथ में उसके संबंध के साथ में उसको बने रहना था. But the devil had other plans. लेकिन शैतान की कुछ और योजनाएं थी. So he tricked Adam and Eve. तो उसने आदम और हवा को बहकाया. And he made them to disobey God. और उसने उनको ऐसा किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे. That is how sin came into the world. इस प्रकार से पाप धरती पर आया. And Adam and Eve, they lost the righteousness of God. और आदम और हवा ने परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया. So you can imagine how Adam and Eve must be feeling after they lost that righteousness. तो अब आप कल्पना कर सकते हो कि आदम और हवा को कैसा लगा होगा जब उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया. They must have been feeling angry at the devil. उस समय उनको शैतान पे गुस्सा आ रहा होगा. And they must have thought, oh, we lost something so precious. उनको लग रहा होगा कि हमने कोई तो बहुमूल्य सी चीज हमने खो दी है उस शैतान को. So now they would have been thinking, how can I get something like that back? तो वो सोच रहे होंगे कि अब हम ये जो बहुमूल्य चीज है उसको हम वापस कैसे ले. But as long as there was sin, there was no way to get it back. लेकिन जब तक पाप था तब तक उस धार्मिकता को वापस पाना असंभव था. Because where there is sin, there God's righteousness cannot be there. क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर की धार्मिकता नहीं हो सकती. So this was like an eternal problem for Adam. तो ये अनंत काल की समस्या हो गई थी आदम के द्वारा. And not just Adam, but all generations coming down from him. केवल आदम के लिए नहीं लेकिन उसके द्वारा आने वाले हर एक पीढ़ी के लिए ये अनंत काल की समस्या हो गई थी. That is why there had to be certain things that had to happen throughout history. इसलिए कुछ चीजों का होना योग्य था पूरे इतिहास में. Because sin created a disturbance in the life of man. पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में एक आंधी जैसी आई. Not only did it separate man from God, पाप ने मनुष्य को केवल परमेश्वर से दूर किया, केवल इतना ही नहीं, but man lost God's righteousness that he had. लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की धार्मिकता को भी खो दिया उस पाप के द्वारा. And therefore now the first thing that what Adam did when he sinned was Adam and Eve, they felt ashamed, they felt naked, they saw themselves, they were naked and they were ashamed. तो पाप करने के बाद में जो सबसे पहली चीज जो आदम और हवा ने देखी वो थी कि उनको खुद पर शर्म आ रही थी. उन्होंने देखा कि वो दोनों नग्न थे. Because righteousness is like a robe. क्योंकि जो धार्मिकता है वो एक वस्त्र के समान है. They were wearing that robe. और वो वस्त्र वो पहने हुए थे. And suddenly they sinned and that robe they were stripped of that robe. और जब उन्होंने पाप किया तो वो वस्त्र उनसे छीना गया. That is why the sensation, the feeling of, oh, I'm naked. इसीलिए उनको वो शर्म आ रही थी कि अरे हम तो अभी नंगे हैं. Earlier they didn't feel that. उसके पहले पाप करने से पहले उनको ये महसूस नहीं हो रहा था.
But why did they feel it the moment they sinned? उस क्षण जब उन्होंने पाप किया तब उनको ये शर्म क्यों आना शुरू हुई? Because they lost the robe of righteousness. क्योंकि उन्होंने उस क्षण धार्मिकता का जो वस्त्र है उसको खो दिया। So now it became the goal of man to obtain righteousness. तो उस समय से फिर मनुष्य का एक ध्येय बन गया था कि अब मुझे वो धार्मिकता को पाना है। But the problem was that man cannot earn righteousness. लेकिन समस्या ये थी कि मनुष्य खुद के द्वारा धार्मिकता को पा नहीं सकता। They needed help to receive righteousness. उनको मदद की जरूरत थी उस धार्मिकता को पाने के लिए। And that is why through time God had to send the law through Moses. इसीलिए एक समय में परमेश्वर को मूसा के द्वारा व्यवस्था को देना उचित था। So we know that when the Israelites came out of Egypt, they were taken to Mount Sinai, and that is where God gave the 10 commandments. इसलिए जब इज़राइल के लोग मिस्र से जब बाहर आए और सिय्योन पर्वत पर गए तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको व्यवस्था दी। And when they came there and when they received the commandments, it was a law. God said that this is what you have to obey, you have to follow if you want to be on my side. तो परमेश्वर ने जब उनको व्यवस्था उस नियम को दिया तो परमेश्वर ने बताया कि ये सारे जो आज्ञा है वो नियम के समान है, तुमको ये उसका पालन करना है अगर तुमको धर्मी बनना है तो। So Moses received the 10 commandments and he came down the mountain and he told the Israelites that this is what we have to obey. तो मूसा को जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, मूसा जब पर्वत से बाहर आया पर्वत से नीचे उतरा तो उसने इजरायलियों को बताया कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। So we'll turn to Deuteronomy chapter 6. तो हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय। We'll read the last two verses 24 and 25. व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय उसका 24 और 25 हम पढ़ेंगे। It says, and the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God, for our God always, for our good always, that he might preserve us alive as it is this day. वचन 24, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी इसीलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इसी रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। So, yeah, 24. We'll pause at 24. So what Moses is telling the people is that God gave us these statutes, these laws that we have to obey. And we need to fear God because it is for our own good, that if we follow this, then we will be on the Lord's side. तो यहाँ मूसा इज़राइल के लोगों से कह रहा है कि ये आज्ञा सब परमेश्वर ने हमें दी है और हमें इसका पालन करना है, अगर हम ये माने तो हमारा ही भला होगा और हम जीवित रहेंगे। So far fine, this is what the Lord told Moses and this is what Moses conveyed to the people. तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने मूसा को बताई और मूसा ने इज़राइल के लोगों को बताई। But if you read verse 25, let's read it. और अगर हम वचन 25 पढ़ते हैं आगे, Then it will be righteousness for us if we are careful to observe all the commandments before the Lord our God as he has commanded us. और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। Now if you go back and see the conversation between God and Moses, nowhere did God tell Moses that it will be righteousness for you if you observe this law. अगर हम मूसा और परमेश्वर के बीच में जो बातचीत हुई है अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने कहीं भी नहीं बताया था कि तू ये सब करेगा तब जाके तू धर्मी होगा। So God did not say if you obey these laws you will be declared righteous. तो परमेश्वर ने मूसा से ये नहीं कहा था कि अगर तुम ये सारे नियमों का पालन करोगे तब ही तुम धर्मी ठहरोगे, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा था। Moses added it by his own thinking. लेकिन मूसा ने खुद के विचार के द्वारा ये चीज को जोड़ दिया कि अगर हम इन सब आज्ञा को मानेंगे तब हम धर्मी ठहरेंगे, ये मूसा ने निश्चित किया। As I told you, there is this earnest desire that man has to be declared righteous. जैसे मैंने कहा था कि मनुष्य की ये इच्छा है कि वो धर्मी ठहराया जाए। It is a goal for man to be called righteous. मनुष्य का एक ध्येय हो जाता है कि उसको धर्मी कहलाना है। Because though you may be physically clothed,
but still you are feeling naked because you have lost the robe of righteousness. हमने शरीर में वस्त्र पहने भी हो, फिर भी क्योंकि हमारे धार्मिकता का वस्त्र छीन चुका था, इसलिए मनुष्य को इच्छा होती है कि वो धर्मी ठहराया जाए. So we have the desire to be clothed with righteousness. इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हमें धार्मिकता के वस्त्र को पहनना है. Maybe that is the reason why Moses said, then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments. इसीलिए शायद मूसा ने कहा होगा कि अगर हम ये सारी आज्ञा मानेंगे तभी हम धर्मी ठहरेंगे. But the Lord didn't say that. ये परमेश्वर ने नहीं कहा, मूसा ने कहा. So we see that there is a very strong desire, all of mankind, they wanted to become righteous. They wanted, because they were feeling that nakedness of being without righteousness. इसीलिए मनुष्य जाति, क्योंकि उनसे धार्मिकता का वस्त्र छीना गया था, इसीलिए उनकी पूरी मानव जाति की इच्छा होती है कि वो धर्मी ठहराया जाए, उनको वो धर्मी कहलाए. So now the Jews started believing something which was not exactly from God. इसलिए जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने ये इस चीज पर विश्वास करना शुरू किया जो परमेश्वर की ओर से नहीं था. They started following the law, thinking that through the law they will get righteousness. उनको ये लगने लगा कि अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे, हम नियमों का पालन करेंगे, तभी हम धर्मी ठहरेंगे. And unfortunately, even in today's world, there are Jews who are still believing that. और आज भी यहूदी लोग हैं जो यही विश्वास करते हैं कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे, अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे, तभी हम धर्मी ठहरेंगे. Not having understood why Jesus Christ came upon this earth. ये ना समझते हुए कि क्यों मसीह यीशु को इस धरती पर आना पड़ा. We'll go to Galatians chapter 2 हम जाएंगे गलातियों उसका 2 अध्याय and we'll read verse 21. और हम वचन 21 पढ़ेंगे. गलातियों 2:21. Now over here, Paul is talking to the Galatians और यहाँ पौलुस गलातियों की कलीसिया से बात कर रहा है, because they were thinking that the law has to be followed even now. क्योंकि वो सोचते थे कि उनको नियम का, व्यवस्था का पालन अभी भी करना है. I mean, Jesus came, they knew that, he died for their sins, they knew that, but still they were thinking that, oh, I need law because I need the righteousness. तो वो उन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, वो यीशु मसीह को जानते थे, फिर भी उनकी समझ ये थी कि हमको उसके बाद भी हमको सारी व्यवस्था का पालन करना है अगर हमको धर्मी ठहरना है तो. But Paul was explaining to them that you no longer need the law because Jesus Christ fulfilled the law and now you are freed from it. और यहाँ पौलुस उनको समझाता है कि अब तुमको व्यवस्था पालन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया है. So we'll read verse 21, Galatians 2:21. तो हम पढ़ेंगे गलातियों 2:21, where he's telling them, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. गलातियों 2:21, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता. Clearly, Paul is explaining to the Galatians that you cannot get righteousness from the law. तो यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते. And if you are thinking that righteousness comes from the law, then Jesus Christ, the reason why he came and died was of no use. और अगर आप सोचते हो कि व्यवस्था को पालन करने के द्वारा आप धर्मी ठहरोगे तो मसीह का आना और उसका मरना व्यर्थ है. Actually, God had already revealed that righteousness is not from the law, but it's going to come. It's going to be revealed. I am going to reveal righteousness to you. तो परमेश्वर ने लोगों से कहा था कि व्यवस्था आने वाली है, आने वाले समय में व्यवस्था आने वाली है. This is in the Old Testament. ये पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा. We'll go to Isaiah. हम जाएंगे यशायाह chapter 56. 56 अध्याय And the very first verse. पहला ही वचन, यशायाह 56 उसका 1. Thus says the Lord, keep justice and do righteousness, for my salvation is about to come, and my righteousness to be revealed. वचन 1, यशायाह 56 उसका 1. यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा. So God is talking about His salvation is going to come to you, is going to come to the people.
और And परमेश्वर righteousness is also going to be revealed through it. और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जो उद्धार है वो तुम्हारे पास आएगा और मेरी जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो प्रकट होगी. So the people are going to see what they have been longing for. They want to be righteous. They are thirsty and hungry to be righteous. And God is saying that I'm going to reveal it to you soon. और जिसके लिए लोग भूखे और प्यासे थे, जो परमेश्वर की धार्मिकता जिसके लिए लोग भूखे और प्यासे थे, परमेश्वर यहाँ कह रहे थे यशायाह में कि वो धार्मिकता को मैं प्रकट करूंगा आने वाले दिनों में. We'll go to Jeremiah chapter 23. हम जाएंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय And we'll read verse 5. और हम पढ़ेंगे वचन 5. यिर्मयाह उसका 23 उसका 5. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. यिर्मयाह 23 उसका 5. यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा. Obviously, this is a prophecy about Jesus, that he is going to come and he is going to reveal the righteousness of God. He will be called the branch of righteousness. और ये यीशु के विषय में भविष्यवाणी है कि वो आएगा और धार्मिकता, क्योंकि वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है. And because of that, people will get what they have been longing for a long time. और यीशु के द्वारा जिस धार्मिकता की लोग राह देख रहे थे वो उनको मिलेगा. And this is not only for the Jews. ये केवल यहूदियों के लिए नहीं था. I mean, this scripture is talking about the Jews. हाँ, ये जो वचन हमने अभी पढ़ा वो यहूदियों के लिए था. But we'll go to Isaiah again. हम फिर से यशायाह की ओर जाएंगे. We'll go to chapter 42. यशायाह 42 and we'll see verse 6. हम छठा वचन पढ़ेंगे. यशायाह 42 उसका 6. It says, I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. वचन 6. मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा. This he is talking to the Jews. He's telling the Jews that I will hold your hand and I will give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. तो यहाँ ये वचन परमेश्वर यहूदियों से बात कर रहा है, उनको कह रहा है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तेरी प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा. So the plan of God was that the Jews will be the first to receive righteousness, and because they will be clothed with righteousness, they will start revealing God's righteousness to the Gentiles. तो परमेश्वर की ये इच्छा थी, परमेश्वर की ये योजना थी कि जो धार्मिकता है वो यहूदियों के द्वारा आए और वो धार्मिकता प्रकाशित हो जिसके द्वारा अन्य जातियों को धार्मिकता के बारे में पता चले. Because all of mankind is searching for righteousness. क्योंकि पूरी मानव जाति उस धार्मिकता की खोज रही है. It's not like only the Jews have sinned and the rest of the Gentiles are okay. ये नहीं है कि केवल यहूदियों ने पाप किया और बाकी के जो अन्य जाति के जो लोग अविश्वासी लोग हैं उन्होंने पाप नहीं किया, ऐसा नहीं है. Because the book of Romans says, calls everyone a sinner. और रोमियो में वचन कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है. We'll go to Romans chapter 3 verse 9. हम जाएंगे रोमियो उसका तीसरा अध्याय उसका 9वां वचन. It says, what then, are we better than they? He's talking to the Jews about the Gentiles. तो यहाँ पर पौलुस यहूदियों से अविश्वासियों के अन्य जातियों के बारे में कह रहा है. तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लग चुका है कि वे सब के सब पाप के वश में हैं. Verse 10 says, as it is written, there is none righteous, no, not one. वचन 10, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं. Verse 11, there is none who understands, there is none who seeks after God. वचन 11, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं.
They have all turned aside, they have together become unprofitable. वचन 12, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। There is none who does good, not one. कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। So whether you're a Jew or whether you're a Gentile or Greek, it doesn't matter. Everyone has been called a sinner. तो अगर आप यहूदी हो या फिर आप अन्य जाति हो, गैर यहूदी हो, आप सब के सब पापी थे। Now anyone who is under sin is always searching for righteousness. तो जो कोई पाप के अंदर है वो धार्मिकता को खोजता है। Deep in their heart, even if they may not declare it with their mouth, but deep in their heart, they are longing to be clothed with the robe of righteousness. भले उनको ऊपर से नहीं लग रहा होगा, लेकिन गहराई से उनके दिल में उनको लगता है कि उनको धार्मिकता चाहिए, वो धार्मिकता की खोज में रहते हैं। And that is why man always tries to do righteous acts, और इसीलिए मनुष्य धार्मिकता के काम करने का प्रयास करता है, because they are searching for righteousness. क्योंकि वो धार्मिकता को खोज रहे हैं। But what does God say about man's righteousness? लेकिन परमेश्वर मनुष्य की धार्मिकता के विषय में क्या कहता है? He calls them as filthy rags. वो उसको फटे हुए कपड़ों के समान कहता है। It is like it doesn't have any value. वो ऐसा है कि उसकी कोई भी कीमत नहीं है। So we may see people who do good things, but that doesn't mean those good things are righteousness. तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि वो धार्मिकता के काम है। That is just self-righteousness which has no value. वो खुद की धार्मिकता होती है जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। So whether a person is giving to the poor or is helping someone else, helping the elderly or helping the widows, that does not mean it is righteousness. तो अगर कोई मनुष्य गरीबों की मदद कर रहा है, उनको कपड़े दे रहा है, खाना दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो धर्मी है। So self-righteousness really has no value in God's eyes. तो खुद की धार्मिकता की परमेश्वर की नजर में कोई भी कीमत नहीं है। What God wants to see is you should have God's righteousness. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम में परमेश्वर की धार्मिकता रहे। And He has put that desire into each of our hearts. और वही इच्छा परमेश्वर ने हम में से हर एक के अंदर डाली है। So we are constantly seeking that righteousness which only can come from God. और इसलिए हम ये लगातार खोजते रहते हैं वो धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से केवल परमेश्वर की ओर से आती है। And that is why Moses, when he told the Israelites, he said that if we follow this, we will get righteousness. इसलिए मूसा ने भी कहा कि अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तब हम परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरेंगे। But God didn't say that. परमेश्वर ये नहीं कहा था, केवल मूसा ने कहा था। But God did reveal righteousness that came from Him. लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट किया। We'll go to verse 21 of the same chapter. हम इसी अध्याय के 20वें वचन में जाएंगे। रोमियो 3 उसका 20, 21. सॉरी 3 उसका 21। But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. रोमियो 3 उसका 21, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. वचन 22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। Yes, for all have sinned and fall short of the glory of God. वचन 23, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So everyone is seeking the righteousness of God, and God has now revealed it to people through Jesus Christ. So through faith in Jesus Christ. तो सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे और परमेश्वर की धार्मिकता को वो खोज रहे थे। वो धार्मिकता परमेश्वर ने जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनको वो दे दी है। And this righteousness, God is offering it to all of us for free. और ये धार्मिकता परमेश्वर हम में से हर एक को मुफ्त में दे रहे हैं। In fact, if you try to do something on your own and try to impress God so that God will give you righteousness, that is a sure way of not receiving God's righteousness. अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर को हम खुश करेंगे और उसके द्वारा हमको धार्मिकता मिलेगी, तो वो गलत है। You can only receive
God's righteousness by faith in Jesus Christ. हम परमेश्वर की धार्मिकता को मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा ही स्वीकार कर सकते हैं। Also, as verse 21 says, the righteousness of God apart from the law. तो यहाँ वचन 21 में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो जो व्यवस्था से अलग है वो प्रकट हुई। So if you are trying to follow the law, then you will not get that righteousness. अगर आप व्यवस्था का नियमों का पालन करके धार्मिकता को पाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। That means all those who think that you can follow, you can believe in Jesus, but also follow the law, then they are missing out on something. अगर कोई सोच रहा है कि मैंने मसीह को ग्रहण किया है उसके द्वारा और मैं जो काम है जो नियम है उसको पालन करने के द्वारा अगर मैं धार्मिकता को पाऊंगा तो आपने कुछ तो खो दिया है। Because the law can never give you righteousness. क्योंकि नियम के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। Because there is only one way that the law can give any person righteousness is if you keep 100% of it. Not even 0.5% can be missed. नियम के द्वारा अगर व्यवस्था के द्वारा आपको धार्मिकता को प्राप्त करना है तो आपको 100% नियमों का व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। अगर आपने 0.5% भी व्यवस्था का पालन नहीं किया तो आपको वो धार्मिकता नहीं मिल सकती। Because in James it said if you break the law in one, it's like you have broken the whole law. क्योंकि याकूब में वचन कहता है कि अगर आपने पूरे व्यवस्था में से किसी एक नियम का भी उल्लंघन किया तो आपने पूरी की पूरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, ऐसा होता है। And Jesus made it very clear that even if you call somebody a fool, you have sinned. और यीशु मसीह ने इसको और कठोर किया और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने किसी को मूर्ख भी कहा तो वो पाप है। If you have hatred for your brother, you have sinned. अगर तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति द्वेष है तो भी तुमने पाप किया है। If a man looks with lustful eyes at a woman, he has sinned. अगर किसी मनुष्य ने गलत नजरों से किसी को देखा तो वो भी पाप है। So in our minds, only God knows what is going on. तो हमारे मन में क्या चल रहा है केवल परमेश्वर को पता है। And he knows that everyone has sinned. और वो जानता है कि हर एक ने पाप किया है। That is why he made a way available to us where we can receive the righteousness of God without our work. इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया है कि हमारे काम के द्वारा नहीं लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा हम उस धार्मिकता को प्राप्त करें। We'll go to Romans chapter 1. हम जाएंगे रोमियो उसका पहला अध्याय। So when Paul was writing this letter to the Romans, तो पौलुस जब ये पत्री रोमियो की कलीसिया को लिख रहा था, he was talking about the gospel. तो वो एक सुसमाचार के विषय में बात कर रहा था। And we'll read from verse 16 and go to verse 17 after that. और हम रोमियो पहला उसका 16वां 17वां पहला अध्याय उसका 16वां 17वां पढ़ेंगे। In verse 16 it says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." रोमियो 1 उसका 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। In verse 17 it says, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." वचन 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। That means the righteousness of God starts from faith and ends with faith. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से शुरू होती है और उसका अंत भी विश्वास में ही होता है। You cannot add your works to it. इसमें आप आपके कामों को जोड़ नहीं सकते। And this is a gift from God. और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है, तोहफा है। No one can earn it. हम उसको कमा नहीं सकते। Okay, and also we are commanded that the just shall live by faith. और यहाँ पर लिखा है कि धर्मी विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So as long as you are living by faith, no one can snatch that righteousness away from you. तो जब तक हम विश्वास से जीवित रहेंगे तो कोई भी हमसे वो धार्मिकता छीन नहीं पाएगा। And you will always be called as a righteous person, because when God looks at you,
He's not looking at you just as you are as a person, but He's looking at what Christ has done on you. तो जब परमेश्वर हमको देखता है तो वो देखते हैं कि परमेश्वर मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, मसीह ने जो हमें धार्मिकता बनाया है वैसे परमेश्वर हमें देखते हैं। He is looking at the blood of Jesus Christ which is upon you. और वो परमेश्वर हमें यीशु के लहू के द्वारा देखते हैं जो हमारे ऊपर है। And He looks at you and says, that is the blood of my son. और परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये मेरे पुत्र का लहू है जिसमें ये मनुष्य खड़ा है। And the blood of Jesus is righteous. और यीशु का लहू धर्मी है। That is why you are righteous. और इसीलिए हम भी अधर्मी हैं। So God can never see you as not righteous. तो परमेश्वर कभी भी हमें अधर्मी के रूप में नहीं देखता, As long as the blood of Jesus is covering you. जब तक यीशु का लहू हमें कवर किए हुए है। So remember everyone, I just want you to understand this fact that what you do does not define your righteousness. तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको समझ लीजिए कि आप जो कुछ करते हैं उसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहराए जाते, It is the blood of Jesus that made you righteous. लेकिन मसीह का लहू आपको धर्मी बनाता है। So if you sin, like what people call as sin, if you tell a lie or if you have robbed something also, even that cannot make you unrighteous. अगर जो संसार के काम है यानी जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, वो भी आपको अधर्मी नहीं बनाते। You will always be righteous in the eyes of the Father. आप हमेशा पिता के नजरों में धर्मी रहोगे अगर आप यीशु के लहू के नीचे हो तो, Because that is how He created Adam. क्योंकि इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया था। Adam did not even have to think what is right and what is wrong. आदम को ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। That is why He told Adam, don't eat from that tree, which is the knowledge of good and evil. इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस पेड़ का जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके पेड़ के फल को तुम मत खाना। Because he doesn't need that knowledge as long as the righteousness of God is in him. क्योंकि जब तक परमेश्वर की धार्मिकता आदम में थी तो उसको भले और बुरे के ज्ञान की जरूरत नहीं थी। The moment Adam and Eve took part of that tree, the fruit of that tree, they became self-righteous. तो जब आदम और हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया तब से वो खुद की नजरों में धर्मी ठहरे, परमेश्वर की धार्मिकता उनसे अलग हो गई। Yes, and they lost the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता को उन्होंने खो दिया। But Jesus came and reversed it. लेकिन मसीह यीशु ने उसको बदल दिया। And Paul explains that no matter what you do, you're not going to be unrighteous. और पौलुस हमें बताता है कि हम चाहे कुछ भी करें वो चीज़ हमें अधर्मी नहीं बनाती। The blood of Jesus has made you righteous. क्योंकि मसीह यीशु के लहू ने हमें धर्मी ठहराया है। So you may say that, so does that mean that I can sin? तो इसका मतलब क्या यह है कि मैंने पाप करना चाहिए? Because I will not lose my righteousness. क्योंकि मैं मेरी धार्मिकता को तो खोऊंगा नहीं, तो क्या मैंने पाप करते रहना चाहिए? That is exactly what Paul addresses later in the chapter, that how can you who have died to sin live in sin? और यही पौलुस आगे के अध्याय में बताता है कि जो तुम पाप के लिए मर चुके हो तो तुम पाप कैसे कर सकते हो? So sin is history for us. तो पाप जो है वो हमारे लिए इतिहास बन चुका है। So we should not have even any condemnation. और इसीलिए हमारे ऊपर कोई भी दंड या फिर कोई दोष नहीं होना चाहिए। That is the devil's weapon, to bring condemnation in you so that he will make sin alive in your life. यही शैतान के हाथ में हथियार है कि वो आपको दोष लगाएगा कि तूने पाप किया, वो ऐसा लगातार दोष लगाते रहेगा। And we should be free from condemnation. क्योंकि हमने मसीह के धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है तो हमें इस दोष से मुक्त रहना है। Only then we will be able to truly walk in that righteousness of God. और जब हम इस दोष से मुक्त रहेंगे तभी हम परमेश्वर की धार्मिकता में चल पाएंगे। What condemnation does is it changes your focus from God's righteousness to self-righteousness. जो दोष है वो क्या करता है कि परमेश्वर की धार्मिकता से हमारी नजर हटाकर खुद के धार्मिकता पर हमारी नजर को लगाता है। And when we change our focus from God's righteousness to our own self-righteousness, we see faults. और जब हम हमारी नजरों को परमेश्वर की धार्मिकता से हटाकर खुद की धार्मिकता पर लगाते हैं तब हम गलतियों को देखना शुरू करते हैं। But as long as we are focusing on God's righteousness,
तो लेकिन जब तक हम परमेश्वर की धार्मिकता की ओर हमारे ध्यान को दिए हुए हैं, we see it as faultless. तो हम लोगों को बिना किसी गलतियों के देखना शुरू करते हैं। That is why it can never bring us condemnation. और इसीलिए वो जब हम ऐसा करते हैं तो हम पर कोई भी चीज दोष नहीं लगा सकती, And that is true freedom. और यही सच्ची स्वतंत्रता है That we are not living in sin, but we are living in righteousness. कि हम पाप में नहीं जी रहे लेकिन हम परमेश्वर की धार्मिकता में जी रहे हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, And this is truly called as walking in God's kingdom. और यही परमेश्वर के राज्य में चलना है। We'll go to Romans chapter 14. हम जाएंगे रोमियो उसका 14वां अध्याय, We'll go to verse 17. हम जाएंगे उसका 17, रोमियो 14 उसका 17। For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो 14 उसका 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म या धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. वचन 18, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। Friends, this is the true treasure that we have. और यही सच्चा खजाना है जो हमारे पास है। This is that diamond which we lost and which Jesus has given back to us. ये वही हीरा है जो हमने पहले खो दिया था, वो मसीह यीशु ने हमें वापस लौटा दिया है। Because now you are made acceptable to God. क्योंकि अब परमेश्वर को हम ग्रहण योग्य है, And when you are acceptable to God, you are also approved by men. और जब हम परमेश्वर हमें स्वीकार करता है तो लोग भी हमें ग्रहण करते हैं। That is why the book of Revelations talks about a huge multitude of people who will be clothed with robes. और इसलिए प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है कि एक बड़ी भीड़ थी जिनको वस्त्र पहनाए गए थे। Isaiah 61, हम जाएंगे यशायाह उसका 61 and verse 10. वचन 10, यशायाह उसका 61 उसका 10वां वचन। I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garment of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. यशायाह 61 उसका 10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की ऐसी चादर ओढ़ा दी है जैसा दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। Friends, this is the treasure. This is the true ornaments that we need to wear. मित्रों, यही सच्चा खजाना है और यही चीजों से, यही गहनों से हमको अपने आप का श्रृंगार करना है। The robe of righteousness. धार्मिकता की चादर। Because in the parable where people are invited for the wedding, those who were without the robe didn't get entry. तो जो यीशु ने जो दृष्टांत दिया कि जहाँ पर एक शादी में लोगों को बुलाया जाता है और जो लोग वस्त्र पहन के नहीं आते उनको हकाला जाता है, निकाला जाता है। So the robe is a sign that you are accepted into the kingdom of God. You will be with God forever in heaven. तो जो वस्त्र है उसका मतलब यह है कि आपको स्वीकारा गया है, आप हमेशा तक परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहोगे। So remember, it's very important. Righteousness is actually a very big topic, but we are covering just a little part of it. And the importance is that it is something which was given to man, he lost it, and now Jesus has restored it back to us. तो धार्मिकता एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम छोटी सी बात, हम अभी छोटा सा भाग हम सीख रहे हैं। तो धार्मिकता ये है कि परमेश्वर ने आदम को दिया था, मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने उसको खो दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वापस हमको लौटा दिया है। Imagine that you have such a wonderful relationship with the Father.
कल्पना कीजिए कि आपका बहुत सुंदर सा संबंध है परमेश्वर पिता के साथ में, that no matter what you do, you're always doing everything right. कि आप जो कुछ कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो। We all want to experience that, right? हम सबको ये इसका अनुभव करना है, बराबर है? That whatever I do, I want it to be done right. कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। Nobody dreams of doing something wrong. कोई भी ये कल्पना नहीं, कोई भी ये सपना नहीं देखता कि मैं गलत कर रहा हूँ। It is just the fallen flesh nature that makes us to do wrong. लेकिन जो पाप किया हुआ जो शरीर है वो चाहता है कि हम गलत करें। But God made salvation available to us in such a way that as long as we are in the Spirit, nothing we do will be wrong. परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग हमें इस तरह से दिया है कि जब तक हम कामों को हमारे आत्मा के द्वारा करेंगे तो हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, Because we are directly connected to God through the Spirit. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में हमारे आत्मा के द्वारा डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। And that Spirit guides us to do the right things. और वो आत्मा हमें सही काम करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। There may be temptations, but we will be able to resist those temptations and even reject those temptations. तो परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन आत्मा के द्वारा हम उन परीक्षाओं को हम नकार सकते हैं। And that is where we will see true victory. और ऐसा करने के द्वारा हमें सच्ची विजय को हम पा सकते हैं। Imagine loads of people coming and telling you, tell lies or do this wrong thing or do that wrong thing, and you are able to easily say, no, I don't want to do it. तो आप कल्पना कीजिए कि कोई आपके पास आ रहा है, आपको कह रहा है कि तुम झूठ बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो, लेकिन क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हो तो आपके लिए आसान हो जाता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। And when you are walking like that, nobody will find fault in you. Just like how when people tried to accuse Daniel and they couldn't find any fault in him. और आप जब आप ऐसा करोगे तो कोई भी आप पे दोष नहीं लगा पाएगा, जैसा दानियल के साथ में हुआ था कि दानियल परमेश्वर के भय में चल रहा था और कोई भी लोग उसमें कुछ भी दोष नहीं लगा पा रहे थे, कोई भी कमी घटी या फिर गलतियां उसमें ढूंढ नहीं पा रहे थे। वैसा आप भी होंगे। So if you're looking for freedom, this is true freedom, where whatever you do, you're always doing it right. तो यही सच्ची स्वतंत्रता है कि जो कुछ आप कर रहे हो आप सही कर रहे हो। And you're not afraid of anything, because see the Spirit of God casts out every kind of fear, and no longer you're afraid that what if I do this and it's wrong, or God will be unhappy with me. So you're not having that kind of a fear. तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आपको उस डर से आपको छुटकारा दे चुका है और आप जो कुछ कर रहे हो आपके बिना डर के आपको करना है। When you are like this, you will be bold. You will have boldness to come to the throne of grace. और जब आप ऐसे होते हो तब आपके पास में वो हियाव आता है कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बड़े हियाव के साथ में जा सकते हो। You will be living a life of victory. आप विजय जीवन जियोगे। And you will not find anything as a struggle. और आपके लिए कठिन परिस्थितियों से जाना, लड़ाई करना ये नहीं होगा। There may be obstacles in your way, कठिनाइयाँ हो सकती है आपके रास्तों में होगी, but you will enjoy crossing those obstacles, लेकिन आप उन परिस्थितियों से जाते हो, आप उसका आनंद लोगे, because you know who's on your side, क्योंकि आप जानते हो कि आपके ओर कौन है, and you know what garment you are wearing. और कौन सा वस्त्र आपने पहना है आप उसको जानते हो। So you will value that garment, the robe of righteousness, and you will walk with that confidence. और आप उस धार्मिकता के वस्त्र का आप महत्व को जानोगे और उस विश्वास के साथ आप चलोगे। So don't let people's words or mistreatment of you affect you in any way. तो लोगों ने जो कुछ कहा होगा या फिर कुछ किया होगा उसके द्वारा आपको कुछ असर ना होने पाए। Think about how God sees you, that He sees you as righteous, just as righteous as Jesus is. परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, आप वो देखिए कि परमेश्वर देखते हैं कि जैसा यीशु मसीह धर्मी था वैसे हम भी धर्मी हैं, And nothing will be impossible. और कुछ भी असंभव नहीं होगा। I want to just pray for you all. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। Heavenly Father, we want to praise you and thank you that you have given all of us who believe in your Son Jesus the robe of righteousness, which protects us and keeps us safe.
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो कोई आपके पुत्र यीशु पर विश्वास करता है उसको आपने एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है जो हमें सुरक्षित रखता है। And we know, Lord, that you care so much about us, that you want us to live in total freedom. कि आप हमारी सुधि लेते हो और आप चाहते हो कि हम पूरी तरह से स्वतंत्रता में जिए। You do not want our minds to be worrying about what is right, what is wrong, what is sin, and what is not. आप नहीं चाहते हो कि हमारा मन हमेशा चिंता करे कि क्या सही है क्या गलत है कहाँ मैंने जाना है। That is the true freedom that we are called to live in. यही सच्ची स्वतंत्रता है जिसमें आपने हमें रहने के लिए जीने के लिए बुलाया है। That whatever we do is going to be right, कि हम जो कुछ करेंगे वो सही होगा as long as we are walking in the Spirit. जब तक हम आत्मा में चल रहे हैं तो जो कुछ हम करेंगे वो सही ही होगा। Because your Spirit will restrain us from doing anything wrong. क्योंकि आपका आत्मा हमें रोकेगा कुछ भी गलत करने से। And we will enjoy this freedom. और हम इस स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। And we will begin to do things that you have called us to do. और हम वो काम करना शुरू करेंगे जो आपने हमें जिस काम को करने के लिए बुलाया है। We will say no to poverty, no to destruction, no to bad health, and we will live in that freedom. और हम कहेंगे कि गरीबी को हम नहीं कहेंगे, हम नाश को नहीं कहेंगे और हम इस स्वतंत्रता में चलेंगे। So that we can enjoy this life that you have given us. कि हम उस जीवन का आनंद लेंगे जो आपने हमें दिया है। And share this joy with everyone. और ये आनंद हम सबके साथ में बांटेंगे। And I know, Lord, that you desire that we share this good news of your salvation and of your righteousness being revealed to everyone. कि हम ये जो खुशखबरी है हम सबको बताएंगे आपके धार्मिकता के बारे में। Thank you, Lord, that you have given your Son Jesus to us so that he could free us from sin and bring righteousness to us. धन्यवाद पिता आपके बेटे यीशु मसीह को देने के लिए जिसके द्वारा हमें धार्मिकता मिली और हमें छुटकारा मिला है। The hunger and thirst that mankind has had right from the very first sin for righteousness, that has been quenched through your Son Jesus. जो धार्मिकता की भूख और प्यास मानव जाति को पहले से थी वो भूख को आपने मसीह के द्वारा पूरा किया, तृप्त किया है, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus, for what you have done on the cross. धन्यवाद यीशु जो आपने क्रूस पर किया। You not only gave your life, but you took away all our sinfulness and gave us your righteousness. आपने केवल आपका जीवन नहीं दिया लेकिन आपने हमारे पापों को ले लिया और हमें धार्मिकता को हमारे लिए धार्मिकता को दे दिया। And you made this exchange possible. You imputed righteousness upon us. और इस अदल बदल को आपने कर दिया कि आपकी धार्मिकता आपने हमें दे दी। And you gave us your Holy Spirit. और आपके पवित्र आत्मा को आपने हमें दिया। Thank you, Holy Spirit, for coming into our lives and enlightening us. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे जीवन में आए और हमारे आँखों को आपने प्रकाशित किया। And through your work in our life, we have revelation of your word. और आपके द्वारा हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिला। And we can learn how to walk in the Spirit. और हम सीख रहे हैं कि हम आत्मा में कैसे चले। And thus experience victory in every area of our life. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम विजय को महसूस करें, हम विजय को जीत ले। Thank you, Father. Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। In Jesus' name. यीशु के Amen. नाम से आमीन। Amen. I'd like to call upon the pastor. या हम सब आशीर्वादित हुए क्या? आमीन। ये जो धार्मिकता हमको मिली है ये परमेश्वर की धार्मिकता, ये हमसे कभी खो नहीं सकती है। आमीन आमीन। क्योंकि हमने कमाया नहीं है, ये हमको वरदान मिला है। हालेलुया। और हमारे कामों के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, विश्वास से ये धार्मिकता हमको मिली है। आमीन। तो हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। पुराना एक गीत है, जिंदगी भर मैं गाऊंगा तेरे गीत। कितने लोगों को आता है पता नहीं, लेकिन आप यह गाना मेरे साथ। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, तेरी रचनाओं की महिमा को
गीतों में डाल के जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। तूने सारी सृष्टि बनाई, तेरा है नील गगन, पंछी तेरा ही गुन गाते गाता है मेरा मन। तूने सारी सृष्टि बनाई, तेरा है नील गगन, पंछी तेरा ही गुन गाते गाता है मेरा मन। ये फिजा गा रही तेरे गीत प्यार के, ये फिजा गा रही तेरे गीत प्यार के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जो भी मैं गाता हूँ परमेश्वर केवल तेरे लिए, मेरा जीवन मेरी आत्मा केवल तेरे लिए। जो भी मैं गाता हूँ परमेश्वर केवल तेरे लिए, मेरा जीवन मेरी आत्मा केवल तेरे लिए। गाऊं गीत मैं सदा तेरे ही नाम के, गाऊं गीत मैं सदा तेरे ही प्यार के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता